Now, hello friends. Yes, today we are taking the lecture about your doubt solving from the chapter matrices. Okay. In the previous lecture of doubt solving, we discussed some doubts regarding logic and matrices. Today, also we are taking some questions students are asking. So now question first we are taking. Before it, just want to announce how many students are asking this question. So look at. Find the inverse of capital A. Find the inverse of capital A is equal to. Find the inverse of the matrix capital A is equal to in matrix cos theta. In matrix cos theta minus sin theta. Cos theta minus sin theta 0. Cos theta minus sin theta 0. Sin theta. Sin theta. Cos theta. Sin theta cos theta 0. 0, 0, 1. It's our question. Okay, what the question is they're asking about it? They're asking find the inverse of the matrix capital A equal to cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1 by two methods. Number first, elementary row transformation. By elementary row transformation, row transformation, formation first, and second, column transformation. Second by elementary column transformation. It's our question. Now look at if you are finding the inverse of a matrix by elementary row or column or adjoint, the answer should be same, exact. There is no change in it, but only method is changed. Look at this question. A equal to repeating question cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. We have to find the inverse of this matrix. And this question asking by Mayuri Dongre from Nasik Road branch, Priyanka Awad from Ashokistam branch, Dikshali Detle from Ashokistam branch, and Sakshi Selke from Ashokistam branch. These four students are asking the same question. That's why first we are taking this question. Now look at friends, how to find the inverse of this matrix by elementary row transformation and by elementary column transformation. First we have to discuss elementary row transformation. As you know, फर्स्ट सबसे पहले अपने को जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर. ओके, तो इनवर्स एग्जिस्ट. सबसे पहले मैं जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा. वी शुड कंसीडर क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट cos थीटा cos ऑफ थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos theta sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. It's our matrix. Now determinant of A is equal to, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया है. चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. क्या लिखते हैं बच्चों इधर? cos theta आपको मालूम है, ये रो ये कॉलम छोड़ो. cos theta into 1 that become cos theta minus 0 into 0, 0 आपको मालूम है. How to expand determinant of 3 by 3? प्लस के बाद लिखते हैं माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. साइन थीटा आपको मालूम है रोल, इस एलिमेंट के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, इसमें इसका मल्टीप्लाई sin theta into 1 that becomes sin theta, बीच में माइनस साइन, 0 into 0 that becomes 0, प्लस प्लस माइनस प्लस, बाहर 0 है, अंदर कुछ भी लिखो पूरा 0 हो जाएगा, तो अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा. Why? So because outside is 0, it means that the total value should be 0. What about determinant of A? Determinant of A equal to cos into cos square theta minus 0 छूट जाएगा, cos theta minus 0 that becomes cos theta, plus sin theta minus 0 that becomes sin theta into sin theta that becomes sin square theta. Now friend we have identity, sin square theta plus cos square theta कितना होता है? Yes, very good, 1 होता है. So determinant of A is equal to 1, not equal to 0. Therefore capital A is non-singular matrix and hence A inverse exists. Therefore A inverse exists. मालूम कर सकते हैं, एग्जिस्ट हो गया. अब एग्जिस्ट होने के बाद अभी आपको मालूम है अगर एग्जिस्ट है तो मैं इसको एलिमेंट्री रो और कॉलम से किस प्रकार सॉल्व करूंगा,
आपको मेथड का एक्सप्लेनेशन देता हूं। देन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट कैपिटल ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये अपना फार्मूला है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल करता हूं, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। व्हाट अबाउट ए? ए इज गिवन, व्हाट गिवन? cos थीटा, cos of theta minus sin theta, cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. It becomes A into A inverse is equal to I. And 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. As you know, ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स है। Why so? Because the given matrix is of the 3x3 ऑर्डर, तो 3x3 का लिखेंगे। अगर ये 2x2 का हो तो उसको 2x2 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कम ऑन फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग। By elementary row transformation, we have to convert this matrix into identical such a way that we get this identity matrix, then we get A inverse. Apply elementary row transformation on this matrix this such that it should be converted into unit or identity matrix. इस मैट्रिक्स पे ऐसा ऑपरेशन करो कि यूनिट मैट्रिक्स बदल जाए। तो आपको मालूम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन, सबसे पहले या 1 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 1 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 1 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं। नाउ लुक एट द सीक्वेंस, द ऑर्डर वी आर टेलिंग यू, इट इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहां क्या लाना है, ओके? और ऑलरेडी वहां पर 1 है, तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप पर जाओ। फिर से देखो मैं क्या बता रहा हूं, मेथड में आपको एक्सप्रेशन दे चुका उसका। लुक एट वंस, ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A11, यहां पर bring 0 in place of A21, bring 0 in place of A31, bring 1 in place of A22। इसका मीनिंग मालूम है आपको, A22, A112 क्या होता है? bring 0 in place of A12, bring 0 in place of A32, bring 1 in place of A33, bring 0 in place of A13, bring 0 in place of A23। A23 का मतलब होता है सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इन बातों से वाकिफ है। A33 का मतलब होता है थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। लुक एट, सबसे पहले मुझे यह बनाना है, cos थीटा की तरफ। क्या वर्किंग करूं? लुक एट, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो पूछा है, लुक एट, या 1 लाने के लिए क्या करूं? बाय, लुक एट दिस, बाय cos थीटा इंटू R1। जब रो के लिए बोला है तो मैं R लिखूंगा, R फॉर रो, cos थीटा इंटू R1 प्लस sin थीटा इंटू R2। फ्रेंड्स लुक एट, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान देंगे प्रॉपर। यहां cos थीटा की जगह 1 चाहिए, क्या वर्किंग करूं? अगर मैं फर्स्ट रो में cos थीटा का मल्टीप्लाई करूं, सेकंड रो में sin थीटा का मल्टीप्लाई करूं, तो इसका टोटल कैलकुलेशन कहां लिखेंगे? फर्स्ट रो। जो पहले लिखा जाता है उसका आंसर वहां लिखते हैं, याद रखो। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड बी राइट इन R1, नॉट R2 और R3। तो पहले जिसमें चेंज नहीं होता है उसको लिखो। लुक एट, ओके, चेंज जिसमें नहीं है पहले वो लिख रहा हूं। क्या चेंज नहीं है? साइन, सेकंड रो में चेंज नहीं है, साइन थीटा वैसे लिखो, कॉस थीटा वैसे लिखो, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 0, 0, 1। लुक एट द स्टेप, ओके, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर है वो R1 में लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है उसका आंसर वहां लिखते हैं। तो लुक एट, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया। क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। या 1 लिख दूं, डायरेक्ट 1 लिखूं, फिर से देखो, cos थीटा इंटू R1 दैट इज cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 आ गया। इधर देखो, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस sin थीटा cos थीटा, दैट गेट कैंसिल 0। चाहो तो मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं, ओके, पूरा लिख देता हूं। चलो, cos इंटू cos क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin इंटू sin क्या मिला? sin स्क्वायर थीटा। ओके, पहले ये फिर इधर देखो,
cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्या बिना माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ओके, प्लस ये प्लस, फिर साइन थीटा में इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसमें cos थीटा इंटू जीरो जीरो प्लस साइन थीटा इंटू जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, लुक एट, और ये एलिमेंट था जीरो और ये वन, ये स्टेप की वजह से थोड़ा दूर लिखना पड़ा, बाकी ए इनवर्स वैसा रहेगा। जो वर्किंग में एलएचएस सेट करता हूँ मैथ्स के वर्किंग के अनुसार वही वर्किंग आरएचएस सेट करना पड़ता है, वही काम उधर करूंगा। तो cos थीटा इंटू वन cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जीरो जीरो, मतलब क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला cos थीटा, फिर cos थीटा इंटू जीरो जीरो प्लस साइन थीटा इंटू वन जीरो प्लस साइन थीटा, दैट बिकम्स साइन थीटा, दैट बिकम्स साइन थीटा, फिर cos थीटा इंटू जीरो जीरो प्लस साइन थीटा इंटू जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, फर्स्ट सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज, जीरो जीरो। नाउ लुक एट फ्रेंड्स, ओके, ये समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप लिखा है, तो मैं थोड़ा कर सकता था इसको, यानी क्या किया मैंने cos थीटा का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको sin थीटा का सेकंड रो में मल्टीप्लाई किया प्लस किया, cos into cos cos थीटा प्लस sin cos थीटा into माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, इसी प्रकार cos थीटा into जीरो जीरो प्लस sin थीटा जीरो जीरो प्लस जीरो, ओके। नाउ सिंप्लीफाई, व्हाट वी have cos square theta plus sin square theta 1, it get cancelled, it becomes जीरो जीरो, sin थीटा वैसा लिखो, cos थीटा सेम लिखो, जीरो 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 वन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिंपल कर रहा हूँ तो कोई स्टेप लिखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल करना पड़ा, तो क्या लिखूंगा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, वी गेट दिस, ओके। अब मुझे बताइए वन आ गया, अब या जीरो चाहिए, या जीरो चाहिए, देखो लुक एट द सीक्वेंस, लुक एट द ऑर्डर, या वन या जीरो चाहिए, बोलो साइन थीटा के रिजल्ट जीरो आने के लिए क्या करो, या मुझे जीरो चाहिए, क्या वर्किंग करो, बाय, लुक एट ये साइन थीटा है, ओके, बाय R2 माइनस साइन थीटा इंटू वन, लुक एट दिस टाइप, बाय R2 माइनस साइन थीटा इंटू R1, मतलब फर्स्ट रो में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो से माइनस कर दो, या जीरो आ जाए, दूसरी जगह क्या आता है उसकी चिंता फिलहाल मत करो, उसी की चिंता करो जहां पर जो एलिमेंट चाहिए, या मुझे जरूरत चाहिए वर्कआउट करना पड़ा, बोलो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यस वेरी गुड R2, जो पहले लिखा जाता है उसका आंसर वाले लिखते हैं, इसका आंसर क्या लिखा अपने R1, इसका आंसर क्या लिखेंगे R2, ओके, तो जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिख देता हूँ, R1 में कोई चेंज नहीं है, वन जीरो जीरो, R3 में कोई चेंज नहीं है, जीरो जीरो वन, ए इनवर्स इज इक्वल, वही बात इधर, R1 में कोई चेंज नहीं है, ओके, cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा जीरो, R3 में कोई चेंज नहीं है, जीरो जीरो वन, केवल R2 में चेंज है, दोनों जगह चेंज करता हूं, देखो अभी वर्किंग करूंगा, R2, ओके, R2 मतलब sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू R1, sin थीटा में R1 का मल्टीप्लाई, sin थीटा माइनस sin थीटा दैट बिकम्स जीरो, फिर R2 मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू जीरो दैट इज जीरो, मतलब cos थीटा माइनस जीरो दैट बिकम्स cos थीटा, ओके, फिर R2 मतलब जीरो माइनस sin थीटा इंटू जीरो 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 माइनस जीरो जीरो, ये स्टेप में वही काम इधर करेंगे, R2 मतलब जीरो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा दैट बिकम माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर से देखो ये जीरो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर काम करेंगे, R2 मतलब वन माइनस sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा दैट बिकम वन माइनस sin स्क्वायर, वन माइनस sin स्क्वायर, लुक एट फ्रेंड्स, R2 मतलब ये वन माइनस sin थीटा इंटू R1, ये sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर, फिर R2 मतलब जीरो जीरो माइनस जीरो इंटू sin थीटा जीरो जीरो माइनस जीरो, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, ओके, सिंपल, इसके लिए भी सिंपल करना पड़ेगा, क्या मिलेगा, वन जीरो 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 cos थीटा जीरो 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 वन,
0 1 0 0 0 cos theta 0 0 0 1. Okay, A inverse is equal to cos theta sin theta 0. Now look at it. Minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta. 1 minus sin square theta, that becomes cos square theta. ये 0 ऐसा रखेंगे, 0 ऐसा रखेंगे, 0 0 1. We get this thing. पूरा नहीं हुआ है? या 1 लाना था लेके आए, या 0 चाहिए लेके आए, इसके बाद अगली लिस्ट में या 0 चाहिए, ऑलरेडी है, खुशी की बात है. आगे बढ़ो, या 1 चाहिए. cos थीटा की जगह कितना चाहिए? 1 चाहिए. लुक एट. अब मैं आपको ये साइड में रफ कर रहा हूं. ओके, ये साइड रफ कर रहा हूं. यहां तक आपको क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से. लुक एट. लुक एट फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट इट? अब मुझे यहां 1 चाहिए cos थीटा की जगह बाय, इधर लिख रहा हूं तो इस तरह लिख देता हूं, उसको लिखूंगा बाय 1 अपॉन cos थीटा इनटू r2. या 1 चाहिए ना मुझे, तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया r2 रो के अंदर. इसका आंसर क्या लिखेंगे? r2. r1 r3 में कोई चेंज नहीं होगा. जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिखते हैं. लुक एट फ्रेंड्स, 1 0 0 कोई चेंज नहीं है. थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, लिखो 0 0 1. ए इनवर्स सेम प्रोसेस हियर. जिसमें चेंज नहीं है पहले उसको लिखो. किसमें चेंज नहीं है? r1 में. दैट इज cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 0. ओके, 0 0 1 थर्ड रो. केवल सेकंड रो में चेंज, जैसे सेकंड रो के लिए मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया. अब वर्किंग करूंगा, ये वर्किंग 1 अपॉन cos थीटा इनटू r. बोलो 1 अपॉन cos थीटा इनटू 0 0. 1 upon cos theta into cos theta 1. 1 upon cos theta into 0 0. बोलो क्लियर? A इनवर्स इज इक्वल टू वही बात, माइनस 1 upon cos theta का मल्टीप्लाई करो माइनस sin theta cos theta. वो cos theta कैंसल, क्या बचेगा? माइनस sin theta. फिर 1 upon cos theta into cos square theta, क्या बचेगा? एक cos theta बचेगा, एक cos theta कैंसिल हो जाएगा. और 0 into 1 upon cos theta क्या मिला? 0. या 1 लिया क्या है, या 0 चाहिए आ गया, या 0 चाहिए आ गया, या 1 चाहिए था लेके आया, या 0 है चाहिए ऑलरेडी आ गया, या 0 चाहिए ऑलरेडी है, या 1 चाहिए था ऑलरेडी है, या 0 चाहिए था ऑलरेडी है, या 0 चाहिए था ऑलरेडी. दैट्स इनफ, इट बिकम आइडेंटिटी. देन कैपिटल I into A inverse, it work for capital I. A inverse is equal to cos theta sin theta cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. एज यू नो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज यूनिट मैट्रिक्स का मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका आंसर इटसेल्फ वो मैट्रिक्स होता है. देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट अबाउट A इनवर्स बेटा? cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1. ओके, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर आपने कोई एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यू आर नोइंग दिस थिंग देन इजीली कैन कैलकुलेट. बट थोड़ा आपको टेंशन कहा हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है 1 कैसे लाने का, 0 कैसे लाने का. स्वाभाविक है ये बातें होना, क्योंकि आपका नॉलेज उस तरह का नहीं है. लेकिन जैसे जैसे आप आगे पर वर्किंग करते जाओगे तो उस तरह का नॉलेज आपको अपडेट होगा. ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम के थ्रू करूंगा, क्योंकि आपने पूछा क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स द सेम मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री रो बाय एलिमेंट्री कॉलम. देखो रो से आंसर आया, याद रखना कॉलम से भी ये आंसर लेके आता हूं. कैसे समझा? लुक एट. ओके फ्रेंड्स, तो इसे मैं रब कर दूं. यस, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? थैंक यू. आगे बढ़ते हैं.
ना लुक एट फ्रेंड्स, ओके वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो आंसर ये आया, इधर लिख देता हूँ आपको आंसर के लिए, यही आंसर मिलना चाहिए कॉलम से। देखो आंसर क्या मिला, ए इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आंसर मिला, cos थीटा sin थीटा 0, cos थीटा sin थीटा 0, इधर क्या मिला, माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1, we get this. अब मुझे बात बताओ आप लोग, जो गिवन क्वेश्चन है उसी का मैं एलिमेंट्री कॉलम के थ्रू इनवर्स निकालूंगा। एक बार क्वेश्चन फिर से बता दूं, ओके आपके क्वेश्चन है ए इक्वल टू, कैपिटल ए इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1। इस क्वेश्चन को मैंने cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, इस क्वेश्चन को मैंने एलिमेंट्री रो के थ्रू बताया, अब एलिमेंट्री कॉलम के थ्रू बताऊंगा। देयर इज नो चेंज इन द आंसर, लुक एट इट, ओके। मैं यहां पढ़ूंगा तो उसके डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डिटरमिनेंट ए 1 था, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। कोई मेथड से करो, एलिमेंट्री रो से करो, कॉलम से करो, एडजॉइंट, ओके। तो मुझे कॉलम से करना है, तो कॉलम के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई। कॉलम के लिए ए इनवर्स मालूम करना वैसे रखो, इनटू ए मालूम है, यस। व्हाट अबाउट ए cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, a inverse into a is equal to I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, fix it is fixed. Now okay, perform the suitable column transformation on the matrix X such that it should be converted into identity matrix, that is unit matrix. Then this matrix will be converted into other matrix. And at last, we get the inverse by elementary column transformation of the given matrix. Look at how. चलो कॉलम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलम मेथड आपको मालूम है, कॉलम के लिए 1 लाते हैं, या 0 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 1 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 0 लाते हैं, फिर या 1 लाते हैं, फिर या 0। ये मेथड आपको मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम, या एडजॉइंट मेथड, जो भी व्हाटएवर, ओके। तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला नहीं है क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू। चलो कम ऑन फ्रेंड्स, कॉलम से करना तो ऑब्वियसली वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द कॉलम। ये कॉलम ऐसे रो का काम कर चुके, कॉलम का काम कर, look at columns are start from left to right, rows are start from top to bottom, r1 r2 r3, column left to right, c1 c2 ओके। ना तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, बाय लुक एट बाय cos थीटा इंटू c1, cos थीटा मतलब इसमें पूरे में cos थीटा का मल्टीप्लाई करो, ओके, या माइनस से प्लस, माइनस sin थीटा इंटू c2। पहले इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब होता है इस फर्स्ट कॉलम में cos थीटा का मल्टीप्लाई करो, और सेकंड कॉलम में माइनस sin थीटा का, सेकंड कॉलम में sin थीटा का मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आया उसको फर्स्ट कॉलम में प्लस करो। इसका जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो कहाँ लिखेंगे, जो पहले लिखा जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, जिसमें चेंज नहीं है पहले उसको लिखो, जिसमें चेंज नहीं है, ओके। सेकंड कॉलम में चेंज नहीं, क्या लिखेंगे, माइनस sin cos थीटा 0 0 1, जिसमें पहले चेंज नहीं है उसको लिख देना चाहिए। इसका वर्किंग कहां करेंगे, कहां लिखेंगे, C1 में, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, सेम प्रोसेस हियर, लुक एट 0 1 0
0 0 ओके चल गो फॉर वर्किंग cos theta into cos theta cos square theta minus minus plus sin theta into sin theta sin square theta that become cos square theta plus sin square theta okay तो यहाँ become cos square theta plus sin 1 लिख दूं या एक्सपेंड करो चलो थोड़ा बढ़ा देता हूँ चलो क्या लिखो cos square theta प्लस sin square theta ये माइनस sin थोड़ा आगे लिख देता हूँ ओके cos theta into cos theta cos square theta minus minus plus sin into sin theta sin square theta चलो it becomes sin theta cos theta और इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस माइनस sin theta cos theta sin theta ऊपर लिख देता हूँ sin theta cos theta इसको एक्सटेंड करता हूँ इधर लिखता हूँ ये क्या था cos theta था यह 0 था यह 0 0 1 ऊपर का लिख रहा हूँ और कुछ लुक एट ओके सेकंड कॉलम वैसे लिखा थर्ड कॉलम केवल फर्स्ट कॉलम में चेंज हो रहा है चलो cos theta into 0 0 minus sin theta into 0 0 0 minus 0 0 it get cancelled sin theta cos theta minus sin theta okay वही काम इधर करो cos theta into 1 cos theta minus sin theta into 0 0 that become cos theta केवल क्या बचेगा यहाँ पर फिर cos theta into 0 0 minus sin theta into 1 sin theta 0 minus sin theta minus sin theta now look at cos theta into 0 0 minus sin theta into 1 minus sin theta so 0 minus sin theta minus sin theta cos theta into 0 0 minus sin theta into 0 0 0 minus 0 that becomes 0 ये स्टेप चलो ये वन होता है it is a inverse okay a inverse cos square theta plus sin square theta that become 1 it is minus sin theta 0 it becomes 0 it is cos theta it is 0 it is 0 0 1 कॉलम में देखो बेटर रहेगा 1 0 0 माइनस sin theta cos theta 0 क्योंकि जो वर्किंग कॉलमाइज करते हो एलिमेंट को कॉलमाइज लिखना चाहिए कॉलमाइज लिखो cos theta minus sin theta 0 0 1 0 0 0 1 we get this thing चलो अब कॉलम के अनुसार मुझे 1 चाहिए तो 1 आ गया अब मुझे यह 0 चाहिए या मुझे sin थीटा की जगह 0 चाहिए कॉलम का वर्किंग करना देखो कैसा वर्किंग होगा यह 0 आ जाए इन प्लेस ऑफ sin थीटा वी गेट 0 कैसे देखो कॉलम के लिए सबसे पहले 1 चाहिए था 1 लिखा अब मुझे इस sin थीटा की जगह 0 चाहिए क्या वर्किंग करूं कि यह 0 आ जाए बाय कॉलम के लिए बाय C2 प्लस sin थीटा इंटू C लुक एट क्या वर्किंग कर रहा हूं सेकंड कॉलम को ऐसा रख रहा हूं फर्स्ट कॉलम में sin थीटा का मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दूंगा तो यह 0 किसी जगह क्या आता है उसकी चिंता नहीं करना व्हाट वी गेट A इनवर्स इनटू अब मुझे बता इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे जो पहले लिखा जाता है C2 सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में कोई चेंज तो जिसमें जो चेंज नहीं है पहले उसको लिख दो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज है क्या नहीं है लिख लो 1 0 फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज थर्ड में कोई चेंज है क्या नहीं है लिख लो 0 0 1 इज इक्वल वही काम इधर करो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं क्या फर्स्ट कॉलम cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा 0 थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं क्या थर्ड कॉलम 0 0 now we are working with second column then second column minus sin theta plus sin theta into 1 sin theta minus sin theta plus sin theta that becomes 0 look at फिर C2 मतलब cos theta plus sin theta into 0 0 cos theta plus 0 cos theta फिर C2 मतलब 0 0 plus sin theta into 0 0 plus 0 that 0 सेकंड कॉलम उसका सेकंड कॉलम ओके C2 मतलब 0
plus sin theta into cos theta, that becomes 0 plus sin theta cos theta, that is sin theta cos theta. Yeah, अच्छा sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. Okay, इधर आओ C2 मतलब 1 plus plus minus minus sin into sin, sin square theta, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square. Now C2 मतलब 0 plus sin theta into 0, 0 plus 0 0, we get this simplified. डायरेक्ट नहीं लिखा, समझाने के लिए स्टेप लिखना पड़ेगा. क्या मिला बच्चों? कमान A inverse 1 0 0 0 cos theta 0 0 0 1 as it is equal to, yes, go for calculation. What we have cos theta minus sin theta 0, it is sin theta into cos theta, sin theta into cos theta, 1 minus sin square theta. Very good, cos square theta, that is cos square theta, identity 0 0 0 1. ये आंसर लिखा मैंने, जो एलिमेंट्री रो से निकला उसका आंसर ये था, इसका आंसर भी यही आना चाहिए ना. 1 आ गया, या 0 चाहिए 0 आ गया, या 0 चाहिए 0 आ गया. अब यह 1 चाहिए बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसपोजिशन मेथड के अनुसार, यह 1 चाहिए cos थीटा. क्या करोगे cos थीटा की जगह बना जाए बाय 1 अपॉन cos थीटा इंटू C2. सेकंड कॉलम को 1 अपॉन cos थीटा से मल्टीप्लाई करो. देन व्हाट वी हैव, इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं. जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिख रहा हूं. फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, बीच का ब्लैंक स्पेस छोड़ा मैंने सेकंड कॉलम के लिए. सेम प्रोसेस हियर, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, cos थीटा माइनस sin थीटा 0. थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, दैट इज 0 0 1. सेकंड कॉलम के लिए मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा. नाउ गो फॉर कैलकुलेशन. 1 अपॉन cos थीटा इनटू C2. ओके, तो 1 अपॉन cos थीटा इनटू 0 0, 1 अपॉन cos थीटा इनटू cos थीटा 1, cos cos कैंसिल हो गया. 1 upon cos theta into 0 0. Come on to that side. Sin theta cos theta, 1 upon cos theta into sin theta cos theta, cos theta get cancel. क्या बचा? sin theta बचा. फिर 1 upon cos theta into cos theta, एक cos से cos cancel, क्या बचा? एक cos theta बचा. Into 1 upon cos theta into 0, that becomes 0. Now it becomes identity matrix. कॉलम के अनुसार क्या होना चाहिए? 1. देखिए 0 चाहिए था, वो ऑलरेडी आ गया. 0 चाहिए था, आ गया. 1 लाना था, 1 भी लेके आ गए. या 0 चाहिए था, रेडीमेड मिल गया. या 0 चाहिए था, फिर रेडीमेड मिल गया. या 1 चाहिए था, फिर रेडीमेड मिल गया. या 0 चाहिए था, इट्स ऑलरेडी 0 चाहिए, बात बन गई, आइडेंटिटी बन गया. मीन्स इट वर्क एज A इनवर्स into capital I. I is the unit or identity matrix of 3 by 3 order. Then it is equal to, what about cos theta? Sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. But as you know, I work as unit matrix, identity matrix. जैसे रियल मैथ्स के अंदर 1 जो होता है यूनिट का काम करता है, जैसे 2 into 1 2, 3 into 1 3, 100 into 1 100. उसी प्रकार मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर I वर्क एज 1, दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो A इनवर्स into I, दैट बिकम A इनवर्स. यानी किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूं, उसका आंसर खुद मैट्रिक्स आता है. Therefore we have A inverse is equal to, what about cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta sin theta cos theta 0 0 0 1. Look at that. इस आंसर में आंसर में फर्क है? कोई फर्क नहीं. वो मैंने एलिमेंट्री रो से निकाला था, एलिमेंट्री कॉलम से. देयर इज नो चेंज, केवल स्टेप बदल गई, करने का तरीका बदल गया, रूल्स बदल गए, मेथड बदल गई, पर आंसर सेम. तीसरी मेथड भी, अगर इसी को मैं एग्जाम के थ्रू करने की कोशिश करूं, देयर इज नो चेंज इन द आंसर. तो आपको मालूम है एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है? माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखो, उसका ट्रांसफर का एग्जाम निकालो, फिर A इनवर्स इक्वल टू एग्जाम के अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू पुट करो, एट लास्ट वी गेट. ओके, तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पूछा है. तो ये 4 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, एक बार रिपीट कर देता हूँ. ये क्वेश्चन पूछा था मुझे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन
Mayuri Dongre from Nasik Road branch, Priyanka Award from Ashok branch, Dikshali Detle from Ashok branch, and Sakshi Shelke from Ashok branch. मैंने क्वेश्चन पूछा था तो दोनों का मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूँ. ओके, तो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं. ओके, तो शेयर अप करने में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ओके, ना मुझे बताइए, एक क्वेश्चन पूछा है आज का इस डाउट का. सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है साक्षी शलके फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच एंड निखिल गोडसे फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच. ओके, और कोई ये क्वेश्चन और दो ही बच्चों ने पूछा है और नाम है नहीं, दो बच्चों ने पूछा है. मैं रिपीट करता हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछा है जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो पूछा है साक्षी शलके फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच एंड निखिल गोडसे फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच. क्वेश्चन है फाइंड एक्स, find capital X, that is the matrix capital X, if capital A into capital X is equal to B, if capital A into X is equal to capital B, where capital A is equal to, where capital A is equal to in matrix 1 2 3 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 and b equal to b is equal to in matrix 1 2 3 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 and b equal to 1 2 3. तो find x if x equal to b. ओके बेटा, लुक एट, क्या कहना है उसका, x मैट्रिक्स निकालो. या x सिंगल वैल्यू नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कैपिटल x. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लुक एट. गिवन कंडीशन इज ax इज इक्वल टू b. ओके, चल ए मालूम है, यस मालूम है, कितना मालूम है आपको, 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 into capital X is equal to B. कैपिटल X मालूम नहीं वैसा लिखो, B मालूम है 1 2 3. ओके ओके, चल अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू निकालना है तो आपको मालूम है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करने का कोई रूल नहीं. हाँ, एडिशन का रूल है, सब्ट्रैक्शन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, लेकिन एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करने का कोई रूल अभी तक नहीं बना. तो इसको मैं इसको डाउनसाइड में नहीं ले जा सकता. फिर क्या करूं, we should work on the matrix capital A such that it should be converted into I, identity matrix. Then we get I into X, that is X. लेकिन दो बातें हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करो कि कॉलम करो, तो रो करो. क्यों रो करो, कितनी रो है इसके अंदर, 1 2 3, इसमें रो कितनी है 1 2 3, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें कॉलम कितने हैं 1. वन कॉलम के साथ क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ दोनों जगह ऐसा वर्किंग करते हैं जो इधर ही पॉसिबल है, इधर ही पॉसिबल है. क्या पॉसिबल है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. ओके, तो बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई such that this matrix should be converted into unit or identity matrix. ओके ओके, सबसे पहले एलिमेंट्री रो के लिए यह 1 लाना पड़ता है, 1 ऑलरेडी आ चुका, यह 0 लाना, यह 0 लाना. कैसे वर्किंग करूंगा कि 0 आए, कौन बताए, बाय रो कवर R1 R2 R3 बाय R2 प्लस R1, ये 0 आए. इसका आंसर क्या लिखोगे, वेरी गुड, जो पहले लिखा जाता है R2. R1 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको लिख दो. R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज है बाद में लिखेंगे. 1 2 X, R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं. ओके फ्रेंड्स, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, क्योंकि R2 में R1 इसको प्लस करके यहाँ इसका आंसर क्या लिख रहा हूँ, 2 + 1. ओके, अब या 1 चाहिए था 0 चाहिए था 0 चाहिए, बाय या 0 चाहिए मुझे, बाय R3 - R1.
इसका आंसर क्या लिखेंगे R3 में। ओके 1 2 3 R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में 1 minus 1 0 2 minus 2 0 4 minus 3 1 x कोई आंसर करो। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज, R3 में चेंज है। ओके 3 minus 1 ओके ओके फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ 1 आ गया, 0 चाहिए तो 0 आ गया, 0 चाहिए या 1 चाहिए। 3 की जगह कितना चाहिए 1 चाहिए। रो के अनुसार वर्किंग कर रहा हूँ फॉरवर्ड, या मुझे कितना चाहिए 1 चाहिए। अब क्या वर्किंग करूँ कि 1 आ जाए। तो लुक एट ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ऐसा वर्किंग करो कि यहाँ पर कल देखो ये 1 0 0 या 1 लेके आओ, फिर या 0 फिर या 0 फिर या 1 या 0 या 0। ओके मैं आपको हिंट देता था, बोलो क्या वर्किंग करूं कि यहाँ पर 1 है, दिमाग लगाओ, या मुझे 1 चाहिए। 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 क्या किया R2 प्लस R1, इसका आंसर क्या लिखा सेकंड रो में। सेकंड रो में क्या हो गया -1 + 1 0 1 + 2 3 2 + 3 5। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, थर्ड में कोई चेंज नहीं। R2 + R1 2 + 1 फिर क्या किया R3 - R1 क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए था। 1 - 1 0 2 - 2 0 4 - 3 1 1 2 3 वैसा लिखा, 0 3 5 वैसा लिखा, सेम प्रोसेस इधर। R3 - R1 कर रहा हूँ। ओके R3 - R1 कर रहा हूँ, तो R3 मतलब क्या 3, R1 कितना 1 3 - 1 2 1 3 2। अब मुझे 1 चाहिए। अब क्या वर्किंग करूँ, क्या बना 1/3 इंटू R1, तो कोई पर्याय बचा नहीं और रो के लिए करना, तो 1/3 इंटू R1 बाय 1/3 इंटू कौन सा है वो, या 1 चाहिए ना, कौन सा रो है सेकंड रो, 1/3 इंटू R क्या मिलेगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 2 सेकंड रो को 3 से डिवाइड करने पर 0 3/3 1 होता है, इट बिकम 5/3, ये बन गया 5/3, ये बन गया 0 0 1, इसमें कोई चेंज नहीं। वही काम इधर करेंगे, x = 1 ओके 1/3 into 3 that become 1, it becomes 2 है। चलो ये स्टेप 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 चाहिए था आ गया, या 2 की जगह 0 चाहिए। ओके नाउ यस फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था ये बाय 1/3 into R2, सेकंड रो में 1/3 का मल्टीप्लाई किया, इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे R2 जब सेकंड रो में। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, सेम बात फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है 1/3 into 0 0 1/3 into 3 1 और 1/3 into 5 5/3, फिर उसके बाद 1/3 into 3 1, वी गेट दिस रिलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, या 1 चाहिए था आ गया, 0 चाहिए था आ गया, या 0 चाहिए 2 की जगह बाय 2 की जगह 0 चाहिए बाय R1 R1 -2 R, इसका आंसर क्या लिखेंगे फाइनल R1। चलो R2 में कोई चेंज नहीं है, उसको लिख दो 0 1 5/3 0 0 1। R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, लिख लो R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, लिख लो R1 को मैंने छोड़ दिया है, यहाँ R1 फर्स्ट रो है तो उसमें चेंज है। ओके 1 - 2 into 0 0 1 - 0 1, ये 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 - 2 दैट बिकम 3, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर 3 ये 3 -2 into 5/3, देखो और अब मैं कर रहा हूँ इधर देखो ये 3 ये 3 -2 into 5/2 दैट इज 10/3, इसे देखो ये 3 मतलब R1 -2 into 5 10 10/3 3 3 जा 9 9 - 10 -1/3 -1। ओके जो कम इधर क्या वही कम इधर करना पड़ेगा। चलो R1 मतलब 1 -1 - 2 into 1 2 1 - 2 -1, you get the calculation। R1 मतलब 1 -2 into 1 2 1 - 2 -, ओके ओके चलो 1 चाहिए था आ गया 0 0 1 0 0 1 चाहिए था आ गया, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, या 0 चाहिए -1/3 0 चाहिए बाय
माइनस 1/3 की जगह मुझे 0 चाहिए बाय R1 प्लस 1/3 इंटू R3 जो क्या है बाय R1 प्लस 1/3 इंटू R3। इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे R1 में। R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है, वही बात। R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं, R1 में चेंज, R1 मतलब -1 यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, या ये 1 0 -1/3। चलो R1 मतलब 1 प्लस 1/3 इंटू 0 1, R1 मतलब 0 प्लस 1/3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, R1 मतलब -1/3 प्लस 1/3 इंटू 1 1/3 -1/3 प्लस 1/3 दैट बिकम्स 0। वही काम इधर करो, R1 मतलब -1 प्लस इधर करो -1 प्लस -1 प्लस 1/3 इंटू 2 2/3 कैल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, इसमें अलग से लिखा -1 प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 2 -1/3 -1/3। चलो 1 0 0 1 0 0 1 0 या 5/3 की जगह 0 5/3 की जगह 0 बाय R2 -5/3 इंटू R3। इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे R2। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में कोई चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज नहीं होगा पहले इसको लिख दो 1 0 0, ओके 0 0 0 0 x -1/2। चलो यहाँ इसका चेंज हो क्लियर कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। चलो लुक एट इट, R2 -5/3 इंटू R3 कर रहा हूँ, R2 मतलब 0 -5/3 इंटू 0 0 0 -0 0, R2 मतलब 1 -5/3 इंटू 5/3 इंटू 0 0 1 -0 that becomes 1। फिर R2 मतलब 5/3 -5/3 इंटू 1 5/3 5/3 -5/3 that becomes 0। वही काम इधर करेंगे, R2 मतलब 1 इधर 1 माइनस ये माइनस 5/3 इंटू 2 that is 10/3 10/3। go for LCM, calculate it, okay, so 3 minus 10 that is -7/3 minus 10 -7/3 minus 7, okay। मुझे बताइए ये क्या बन गया, क्या बन गया ये यूनिक आइडेंटिटी। इसको आई लिख सकता हूँ, देन I into capital X is equal to I into capital X is equal to -1/3 -1/3 -7/3 -1/3 -7/3 2। But I work as 1 in metric system, then I into x x, and therefore capital X is -1/3 -7/3। It is the required matrix. It is the required matrix। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अगर आपको चेक करना आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वो भी कर सकते हो। जैसे ए मैट्रिक्स मालूम है, इसका मल्टीप्लाई करो ए इंटू एक्स, अगर उसका आंसर बी आता है या आता है तो अपना आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। करके देखो ए मैट्रिक्स में एक्स इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर ये मैट्रिक्स आएगा, बी आएगा 1 ओके। ठीक, तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन के लिए। तो लुक एट, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें एलिमेंट्री रो कॉलम कुछ नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन जी समझता है क्या करना है। ए दिया होता, एक्स नहीं मालूम था तो मैंने एक्स इक्वल टू बी लिखा, इट वर्क फॉर ए, एक्स वर्क फॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, आइडेंटिटी वन यूज किया, तो इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया सच वे दैट दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूनिट मैट्रिक्स, वी गेट दिस थिंग, देन एट लास्ट वी गेट कैपिटल एक्स, दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके।
चलो कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार अपने जो बच्चों का डाउट था वो सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके देखते हैं। नाउ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा निखिल गौड़ से अशोक स्तंभ ब्रांच ने। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इक्वल टू 4 5 2 1, capital A equal to 4 5 to 1, then show that A inverse is equal to 1 by 6 bracket A minus 5 1। ये प्रूव करना। ओके, ये क्वेश्चन पूछा, फिर से रिपीट कर दो। ये क्वेश्चन निखिल गौड़ से फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच ने पूछा है। ए दिया हुआ है 4 5 to 1, तो शो करना है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 1 by 6 ऑफ A minus 5 1। ओके, कम ऑन, कैसे वर्कआउट करूंगा देखो। ये मालूम है, ओके इसका इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालना आपको सबसे अच्छी आसान मेथड कौन सी लगती है? एग्जाम एक उससे इनवर्स निकाल देता हूं। ओके, फिर उसके बाद आरएचएस में सिंपल करेंगे, आंसर में छोड़ना चाहिए। देखते हैं ना, ए दिया हुआ है ए इक्वल टू 4 5 2 1। डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 1 the 4 minus 2 5 the 10, it becomes minus 6। 4 1 the 4 2 5 the 10, 4 minus 10 minus 6, since determinant of A is equal to minus 6 not equal to 0. Therefore, capital A is non-singular matrix, is non-singular matrix. Therefore, A inverse exists, मालूम कर सकते हैं। yes, तो आपको आसान मेथड कौन सी लगती है, फिर से बोलो एक बार। वेरी गुड, इनका कहना है सर एग्जाम। एग्जाम में सबसे पहले क्या निकालते हैं? माइनस M11 M12 M21 M2, these are the 4 minus M11 इसके लिए छोड़ो, ये छोड़ो 1, M12 इसके लिए छोड़ो, ये छोड़ो 2, M21 इसके लिए छोड़ो, ये छोड़ो 5, M22 इसका माइनस, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो 4, ये हो गया माइनस। इसके सामने कोफैक्टर कैपिटल A11 कैपिटल A12 कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, कैपिटल A21 कैपिटल A22। आपको मालूम है कोफैक्टर का मेथड, इन दोनों को प्लस करने पर अगर इवन आता है तो ये नंबर वैसे रखने का, ऑड आता है तो साइन बदल देना। 1 + 1 इवन है तो 1 का 1, 1 + 2 ऑड है इसका साइन बदल दो, 2 + 1 ऑड है इसका साइन बदल दो, 2 + 2 4 है इसका साइन वैसा रखो। नंबर नहीं बदलना, कब साइन बदलना? कब? जब इन दो नंबर को, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को प्लस करने पर इवन आता है तो वैसे रखने का, ऑड आता है तो साइन बदल देने का। We get the cofactor of the elements of matrix capital M. Then the matrix of cofactors, the matrix of cofactors of capital A. The matrix of cofactors capital A is 1 minus 2 minus 5 इस तरह। अब इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है? इसका ट्रांसपोज, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसफर करेंगे क्या मिला 1 minus 2 minus 5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू, व्हाट अबाउट डिटरमिनेंट? ए का डिटरमिनेंट कितना है? यस -6। व्हाट अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट कितना है? 1 -5 -2। अब ये हो गया आपके पास। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनवर्स क्या मिला?
माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 5/6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 3 6 और ये माइनस हो जाएगा 2 2 4 इट इज a that is LHS that is a inverse that is LHS. Now take the RHS. What about RHS friends? RHS RHS equal to 1/6 bracket a minus 1/6 कर्ली ब्रैकेट लगाओ ए मैट्रिक्स मालूम है ए कितना मालूम है 4 5 2 1 -5 आई मालूम है कितना मालूम है 1 0 0 1 क्लोज द मैट्रिक्स क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/6 कर्ली ब्रैकेट 4 5 2 1 -5 का मल्टीप्लाई करो इनसाइड क्या मिला 5 0 0 5 close the matrix close the curly bracket. What about it 1/6 go for calculation these two matrices can be subtracted why so बोलो रीजन बोलो yes because they have the same order अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो मैं इसको क्या मिलेगा बच्चों बोलो 4 - 5 -1 5 - 0 5 2 - 1 2 1 - 5 -4 अंदर 1/6 का मल्टीप्लाई करो क्या मिला फ्रेंड्स 1/6 का मल्टीप्लाई करने पर अंदर -1/6 1/6 into 5 5/6 1/6 into 2 that is 1/3 yes and 1/6 into -4 -2/3 मुझे बताओ इसमें चेंज है therefore LHS equal to RHS that is A inverse is equal to 1/6 in bracket A minus 5 थिंक इस प्रकार निखिल का क्वेश्चन था ओके नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट डाउट ओके फ्रेंड्स नाउ कम ऑन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन पूछा है चलिए क्वेश्चन तरफ आते हैं ये इनवर्स वाला तो ये देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन लिया था cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 ये क्वेश्चन श्रुति हेम्बाड़े फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच इन्होंने भी इनका भी ये क्वेश्चन था जो अपन सॉल्व कर चुके हैं श्रुति हेम्बाड़े जो आपका क्वेश्चन था cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 का इनवर्स निकाल के बताओ तो मैंने दोनों मेथड बताया आपको एलिमेंट्री रो से बताया कॉलम से बताया तो ये प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो गया उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा फिर श्रुति हेम्बाले ने क्वेश्चन पूछा है नासिक रोड ब्रांच में ओके हालांकि मैं ये क्वेश्चन शायद सॉल्व कर चुका हूं आपको लास्ट चलो ओके नहीं आपको दूसरी ब्रांच पे क्या होगा कोई बात कम एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने आज का क्वेश्चन जो भी है वो जो पूछा है क्वेश्चन इफ कैपिटल ए इक्वल टू if capital A equal to 1 minus 1 1 minus 1 2 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3 ये क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वेरीफाई करना है verify that A into adjoint of A into adjoint of A
is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. ये अपने प्रूव है. Where I is identity matrix, that is unit matrix. 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3 के लिए अपने क्वेश्चन पूछा है. श्रुति हेम्बाड़े फ्रॉम नासिकोड़ा ब्रांच. ओके, देखो श्रुति किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको. एडजॉइंट बोला हुआ है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट निकालने आपको मालूम है, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, उससे बात जाए. और डिटरमिनेंट ए इनटू आई वो भी क्वेश्चन के अंदर है. एलएचएस मिडिल टर्म आरएचएस, तो एडजॉइंट की जरूरत है, डिटरमिनेंट ए की जरूरत है. आई मैट्रिक्स तो आपको मालूम है क्या होता है, ए मालूम है गिवन है, तो पहले डिटरमिनेंट निकाल देते हो गिवन मैट्रिक्स. अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. Go for determinant equal to 1 should be outside. Each row column को छोड़ो 0 into 3 0 minus 0 into minus 2 0 minus minus plus 1. Each row is column को छोड़ो 3 into 3 9 minus minus plus 1 into 2 2 plus minus minus plus हो गया plus minus plus 2. Each row column को छोड़ो 3 into 0 0 minus 1 into 0 0. What we have determinant A equal to 0 minus 0 0 0 into 1 0 1 into 9 plus 2 11 11 into 1 11 plus 2 minus 0 0 minus 0 0 0 into 0. determinant A equal to 11. इसकी जरूरत ही निकाल दिया. अब जरूरत है एडजॉइंट की. एडजॉइंट निकालने की वही बात, माइनर कोफैक्टर सब बातें आ गई. चलो इधर कर देता हूँ. माइनर निकालो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33. ओके बेटा, कम ऑन. लुक एट M11, इसको ले दो तो ओके. इसका माइनर चाहिए, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो. 0 into 3 0 minus 0 into minus 2 0 0 minus 0 that becomes 0. इसका माइनर आ गया. अब इसका माइनर चाहिए. इस रो इस कौन को छोड़ो 3 3 9 9 minus minus plus 1 into 2 2 11. M13 इसके माइनर के लिए इसको छोड़ो, इसको 3 into 0 0 minus 1 into 0 0 क्या मिला 0. M21 इसका माइनर, इसके माइनर के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो इस कॉलम minus 1 into 3 minus 3 minus 2 into 0 0 what we have minus 3 M21. इस रो इस कॉलम minus 1 into 3 minus 3. ओके. M22 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 3 3 minus 1 into 2 2 that becomes 1 into 3. इसके माइनर के लिए M23 मतलब इसका माइनर के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 0 0 minus minus plus 1 into 1 1 that 1. फिर M31 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो minus 1 into minus 2 minus minus plus 2 minus 0 into 2 0 that becomes 2. M32 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into minus 2 minus 2 minus 3 to the 6 that becomes minus 8. चेक करते हैं एक बार M32 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into minus 2 minus 2 minus 3 to the 6 minus 8. M33 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 0 0 minus minus plus 3. ये हो गया आपका माइनर्स. क्या हो गया माइनर्स. अब कोफैक्टर्स निकालेंगे. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. इसको प्लस इवन आता है तो वैसे रखने का, ऑड एक्सप्रेशन बदल देना. 1 plus 1 2 इवन है 0 का 0. 1 plus 2 ऑड है -11. 1 plus 3 इवन है 0 का 0.
2 प्लस 1 ऑड है, साइन बदल दो, -3 का प्लस 2 प्लस 3 1 है, 1 का 1, 2 प्लस 3 ऑड है, साइन बदल दो, -1, 3 प्लस 1 4 इवन होता है तो 2 का 2, 3 प्लस 2 ऑड है, इसका साइन बदल दो, +8, 3 प्लस 3 6 इवन है, 3 का 3। शॉर्ट मेथड में इसमें क्या करते हैं, हालांकि फार्मूला इसका ऐसा होता है a11 इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू m11, ये उसका फार्मूला होता है। एक शॉर्ट ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं कि इन दोनों को प्लस करने में इवन आता है तो ये नंबर वैसे रखने का, और अगर ऑड आता है तो उसका साइन बदल देने का, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, चलो कम ऑन फ्रेंड्स। तो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ cofactors of capital equal to, look at, बोलो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 0 -11 0 3 1 -1 2 8, ये हो गया आपका कैपिटल ए। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके कॉलम को रो को कॉलम को, दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या मिला, 0 3 2 -11 1 8 0 -1, इसको ऐसा कर, ओके, एडजॉइंट ऑफ। अब मुझे बताओ, जो प्रूव करना है उसका पहले एलएचएस ले लेते हैं, फिर मिडिल टर्म लेंगे, फिर आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, बोलो ए कितना रे, गिवन है, क्या गिवन है ये, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, बोलो एडजॉइंट ऑफ कितना मिला, 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 0 -1 3, we get this thing। दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के रूल के अनुसार इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, देन इट इज कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट कर सकता हूं। चलो क्या मिला, बोलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0 -1 into -11 -1 +11 2 into 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3 -1 into 1 -1 2 into -1 -2 1 into 2 2 -1 into 8 -8 2 into 3 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 0 0 0 into -11 0 -2 into 0 0 3 into 3 9 0 into 1 0 -2 -1 -1 +2 3 into 2 6 plus 0 into 8 0 -2 3 is 6, second row first column, second row second column, second row third column, okay, now come on to the third row first column 1 into 0 0 plus 0 into -11 0 3 into 0 0, third row first column, third row second column 1 into 3 3 plus 0 into 1 0 3 into -1 -3 1 into 2 2 plus 0 into 8 0 plus 3 into 3 3, ओके। चलो बोलो बेटा क्या मिला कैलकुलेशन, 11, ये 0 हो गया, 6 + 2 8 -8 0 हो गया, 9 + 2 11 हो गया, 6 - 6 कैंसिल 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 मिला, और ये 3 + 2 ओके यार, 3 3 9 होता है, 3 3 9 2 1 2 0 2 8 3 3 9 9 + 2 11, ये स्टेप में, ओके। देन समथिंग गेट कॉमन, यस 11 कॉमन कर सकता हूँ, क्या मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इट वर्क एज 11 into r, ये मिला, बट 11 क्या था, 11 था अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू r, मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि कहां का क्वेश्चन आपका, ये a into adjoint a, दैट इज a into adjoint of a
इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वन। फर्स्ट पार्ट मीन्स एलएचएस लिया और मैंने आरएचएस प्रूव कर दिया, मिडिल टर्म लेके ये प्रूव कर देता हूं। लुक एट कैसे मिडिल टर्म लेके कैसे प्रूव कर देता हूं। कम ऑन फ्रेंड्स, ओके तो मिडिल टर्म लेके प्रूव कैसा करना है। लुक एट एम्प्टी फॉर मिडिल टर्म, एम्प्टी मिडिल टर्म क्या बच्चों, मिडिल टर्म एडजॉइंट इनटू ए आउटसाइड ए, और इसकी इक्वली प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट इनटू आई। चलो एडजॉइंट ए की वैल्यू बोलो, यस बोलो एडजॉइंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ए की वैल्यू बोलो, इट्स द क्वेश्चन 1 -1 2। ओके नाउ फ्रेंड्स, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इज, एडजॉइंट कितना आपके पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू ए कितना 1 -1 2 3 0 -2 1 0 1 0। चलो क्या मिला, ग्रुप वन मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0 3 3 is 9 2 into 1 2, first row first column, first row second column 0 into -1 0 3 into 0 0 2 into 0 0, first row first column, first row second column, first row third column 0 into 2 0 3 into -2 -6 plus 2 into 3 plus 6, first row first column, first row second column, first row third column, second row first column -11 into 1 -11 plus 1 into 3 3 plus 8 into 1 8, second row first column, second row second column -11 into -1 plus 11 plus 1 into 0 0 plus 8 into 0 0, second row first column, second row second column, second row third column -11 into 2 -22, 1 into -2 -2, 8 into 3 22. Now third row first column 0 into 1 0 -1 into 3 -3 plus 3 into 1 3, third row first column, third row second column 0 into -1 0 -1 into 0 0 3 into 0 0, third row first column, third row second column, third row third column 0 into 2 0 -1 into -2 plus 2 3 क्या मिला बच्चों को, 9 plus 2 11, 0 -6 plus 6 0, 3 plus 8 11 -11 0, 11 plus 0 plus 0 that is 11, -22 -2 -24 -24 plus 24 0, -3 plus 3 that becomes 0, 0 plus 0 that becomes 0, 9 plus 2 that becomes 11. Yes, we can take common. Yes, we can common. क्या कॉमन करो, क्या बचा 1 0 1 0 0, किसके इक्वल आ रहा है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है आपके पास, a into h of a is equal to 11 किसके इक्वल है, क्या पता था 11 किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट ये किसके इक्वल है, therefore LHS is equal to RHS and middle term also। ओके तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली यस भी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिकल में पूछा तो 5 मार्क्स के लिए, और अगर बोर्ड में पूछा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समय ज्यादा लगता है, हाँ अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो फिर आप कर सकते हो। ओके तो क्या मेरा फिर यस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भार्गवी देशपांडे फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच, भार्गवी देशपांडे फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच ने क्वेश्चन पूछा है, शो विद द यूजुअल नोटेशन दैट फॉर एनी मैट्रिक्स, क्वेश्चन इस प्रकार है
देखो ये क्वेश्चन पूछा है भार्गवी देशपांडे फ्रॉम नासिक ब्रांच शो विद द यूजुअल नोटेशन फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए is equal to aij small aij by 3 by 3 order। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट पूछा है बच्चे ने इस क्वेश्चन का। पहला पार्ट पूछा है स्मॉल ए वन वन कैपिटल ए टू वन प्लस स्मॉल ए वन टू कैपिटल ए टू टू प्लस स्मॉल ए वन थ्री इंटू कैपिटल ए टू थ्री इज इक्वल टू ये पूछा प्रूव कर। पहला पार्ट इसे देखो ए वन वन ए टू वन ए वन टू ए टू टू ए वन थ्री ए टू थ्री, ओके जीरो बताना। सेकंड पार्ट पूछा है इसका सेकंड पार्ट है स्मॉल ए वन वन कैपिटल ए वन वन प्लस स्मॉल ए वन टू कैपिटल ए वन टू प्लस स्मॉल ए वन थ्री स्मॉल ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री इज इक्वल टू डिटरमिनेंट भार्गवी देशपांडे। ओके लुक एट द क्वेश्चन। और यूजुअल मीनिंग का मतलब ये हुआ A11 represent the element of the first row first column, small a12 represent the element of first row second column, and so on। Capital A21 denoted by that the cofactors of the element 21। okay, it means A22 मतलब cofactor किसका 22 का मतलब सेकंड रो के सेकंड कॉलम का cofactor, इसका मतलब होता है सेकंड रो के थर्ड कॉलम का cofactor। देखो कैसा प्रूव करेंगे। यूजुअल नोटेशन बोला है तो लेट जो ए आई जे उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लेट कैपिटल ए इक्वल टू एलिमेंट 3 by 3 का ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री, ये आपका कैपिटल मैट्रिक्स। ओके पहला पार्ट प्रूव करता हूँ। तो सबसे पहले ए वन वन तो मालूम है एलिमेंट खुद एलिमेंट ए वन वन ए वन कैपिटल ए टू वन निकालेंगे वो फैक्टर ए टू वन का। तो पहले ए टू वन का माइनर निकालो एम टू वन का माइनर निकालो एम टू वन का माइनर एम टू वन सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम इसका माइनर निकालो। इसका माइनर निकालने के लिए इस कॉलम को छोड़ो क्या बचा ए वन टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस जो है ए टू वन इसका माइनर निकाल रहा हूँ ना इस कॉलम को छोड़ो ए वन टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री इंटू ए थ्री इसका माइनस एम टू। ओके तो इसका कोफैक्टर है और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ए टू वन का कोफैक्टर टू प्लस वन और है तो सबका साइन बदल दो मतलब क्या हो जाएगा माइनस ए वन टू ए थ्री थ्री माइनस माइनस प्लस ए वन थ्री ए थ्री। ओके चलो अब मुझे क्या मिल गया ए वन वन तो खुद एलिमेंट होता है ए टू वन मिल गया। अब ए टू टू के लिए मुझे एम टू टू निकालना पड़ेगा एम टू टू इसका माइनर इसके माइनर के लिए इस रो इस कॉलम क्या बचा ए वन वन इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री इंटू ए थ्री। ओके देखो इसके माइनर के लिए इस रो कॉलम को छोड़ो ए वन वन ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री ए थ्री माइनस को फैक्टर निकालना है ए टू टू इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे लिखो ए वन वन ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री ए थ्री। अब मुझे ए वन टू का माइनर ए टू टू का माइनर मिल गया। अब मुझे ए टू थ्री का माइनर चाहिए तो मुझे एम टू थ्री का माइनर निकालना पड़ेगा कोफैक्टर निकालने ए टू थ्री का कोफैक्टर निकालने के लिए एम टू थ्री निकालना एम टू थ्री सेकंड रो के थर्ड कॉलम का ये रो ए कॉलम छोड़ो क्या ए वन वन इंटू ए थ्री टू माइनस ए टू थ्री इसको छोड़ो इसका माइनस ए वन टू टू प्लस थ्री भाई ऑड है साइन बदल दो क्या लिखूं ए टू थ्री
साइन बदलो बेटा, बोलो माइनस A11 A32 minus minus plus A12 A3. Okay, these are minus, these are perfect. Take the LHS of the first part. जो प्रूव करना है उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का LHS बोलो क्या है? A11 स्मॉल A11 कैपिटल A प्लस स्मॉल A12 कैपिटल A प्लस स्मॉल A13 into capital A. S1 meaning means A11 means first row के first column का element, A21 means second row के first column के element का कोफैक्टर. कैपिटल A कोफैक्टर को डिनोट करता है, स्मॉल एलिमेंट को शो करता है. चलो बोलो A11 वो A11 का A11 ही है, एलिमेंट है इसलिए. A21 की वैल्यू बोलो, A21 look at minus A12 into A33 plus A13 into A32 प्लस A12 ऐसे रखो, A22 बोलो, A22 की वैल्यू यहां से है A11 A33 माइनस A13 A31. देखो कैलकुलेशन सावधानी से करेंगे, एक जब गड़बड़ हो जाना है तो पूरा गड़बड़, प्लस A13 वैसे लिखो इंटू कैपिटल A23, बोलो कैपिटल A23 की वैल्यू माइनस A11 A32 प्लस A12 A3. We get this. चलो go for calculation. माइनस तो एडजस्ट करके लिखो A11 A12 प्लस A11 A13 A3 प्लस A11 A12 A माइनस A12 A13 A3 प्लस माइनस माइनस A11 A13 A3 प्लस A12 को पहले लिखो, एडजस्ट करके लिखो A13 A3. देखो कैलकुलेशन कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस A11 A12 यस गुड, देखो माइनस A11 A12 A13 एडजस्ट कैंसिल A11 A1 यस A11 A13 A12 A1 यस गुड इज इक्वल टू एंड इट इज फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट का इनका कहना है, तो अभी खुद करके बताओ. ओके कैसे करेंगे? A11 A12 ऐसा रखो, A13 केवल A11 A12 A13 के माइनर निकालो, और माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालो, एलएचएस में पुट करो, उसका आंसर वही आएगा जो इस मैट्रिक्स कैपिटल का डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी. सेम प्रोसेस. ओके तो यहाँ ये क्वेश्चन क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगली बार. थैंक यू वेरी मच.